Hello, my dear students. Today we are going to do chapter 14, and the title of the chapter is Charles Arrested Once Again. This has been taken from A Tale of Two Cities. Okay, let's do now. A year passed this way. ऐसे ही एक साल निकल गया जैसे वो चार्ल्स अरेस्टेड था. Okay. Then one day Charles was tried in the court. फिर वो ट्राई किया गया in the court. The courtroom was full of people. The defarges were there and so were Mr. Lorry and Dr. Manet. कौन कौन थे? बहुत सारे लोग थे और उनके अलावा लॉरी और डॉक्टर मैनेट भी थे. चार्ल्स वॉज ट्राइड फॉर लिविंग फ्रांस. ठीक है, क्या उस पर मुकदमा चलाया गया कि वो फ्रांस छोड़ के गया था. लिविंग फ्रांस वॉज नाउ अगेंस्ट द लॉ एंड फॉर इफ अ मैन लेफ्ट फ्रांस एंड कम बैक अगेन ही वुड लूज हिज लाइफ. तो न्यू लॉ क्या था कि अगर पहले कोई फ्रांस छोड़ के जाता है और वापस आता है तो उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे. देयर वॉज नो सच लॉ when Charles left France, but that was not taken into consideration. चार्ल्स ने बेशक बहुत बोला कि जब वो गया था तब उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था, लेकिन उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई. You have lived many years in London, asked the judge. Yes, replied Charles. Then, are you not an immigrant? No, I don't think so. Why? I left France because before the law was passed, I gave up my title. Title means his name, Avamond, as I did not want to live off the poor of France. I earned my own living in England. ठीक है, वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी इनहेरिटेंस थी उसके अंकल से, जहाँ उसके फादर से, वो उस पर डिपेंड नहीं करता. वो खुद अपनी कमाई करता है इंग्लैंड में. एज अ टीचर ही इज़ वर्किंग देयर. ठीक है, तो वो उस पर डिपेंडेड है. हाउ कैन यू प्रूव दैट? डॉक्टर मैनेट एंड Mr. Gabelle know that it is true. You married in England, yes, but not an English woman. ठीक है, वो वहाँ पे मैरिड जरूर है, लेकिन जो लेडी है वो कौन है? डॉक्टर मैरिड की डॉटर है. You married a French woman? Yes. And who is she? Yes, the daughter of Dr. Maynard. The crowd started shouting, let him go. He's a friend of the prisoner of the Bastille. Let him go. Let there be silence, yelled the judge. Yell means he shouted. ठीक है, उसने बाकी सारे क्राउड को चुप रहने के लिए बोला. Why did you come back to France? Gabelle, my friend, was in prison. I came to help him. This is the reason he is giving for coming back to France. Gabelle's letter was read. फिर गबेले की लेटर पढ़ी गई. Gabelle was called as a witness उसको बुलाया गया. He said that everything that Charles said was true. और उसने भी यही बात बोली कि जो चार्ल्स बोल रहा है वो सच है. Then Dr. Manet was called. He also affirmed that all that Charles said was true. ठीक है, फिर एज अ विटनेस डॉक्टर मैनेट को बुलाया गया. उन्होंने भी यही बोला कि जो चार्ल्स बोल रहा है सच है. Charles was set free, but Lucy was still worried. She worried each time she heard a step on the stairs. लेकिन लूसी डरी हुई है. बेशक उन्होंने चार्ल्स को छोड़ दिया. Their housekeeping was simple. Every evening, Jerry and Miss Pross bought a little from each shop. We will need wine today, said Miss Pross. But wherever we go, they would be drinking and toasting to murder. Dr. Manet is there hope of leaving this place yet? I fear not yet. It would be dangerous. Now they are planning to leave that place. ठीक है, उन्होंने फ्रांस छोड़ के जाना है लेकिन अभी जा नहीं सकते. I fear then we must be patient, she said as she went out. Suddenly Lucy cried out, what was that? I heard a strange feet on the stairs. ठीक है, जो उसको डर लग रहा था वो सच साबित हुआ. And she heard footsteps on the stairs. My dear, said her father, the least things frighten you. कि छोटी छोटी बात से भी तुम डर जाती हो. At that moment a blow was struck on the door. And then ठीक है, एक blow हुआ डोर पे. नॉक किया किसी ने. हाइड चार्ल्स क्विक, शी whispered to चार्ल्स. वो इतनी डरी हुई है कि जल्दी जल्दी उसे बोलने लगती है कि तुम छुप जाओ कहीं.
He is safe, my child, said the doctor as he went to open the door. Hardly had he opened it when four rough men. This can be asked in the MCQs that how many men entered? Four. All armed. सबके पास weapons थे. Barged in means धक्के से अंदर आना. Rushed in. Citizen never mourned. You are again a prisoner of the Republic, they cried. Why? Asked Charles. You will know everything tomorrow. Today you have to go back to prison. Dr. Manet, who stood as if turned into stone, now asked them, Do you know me? Yes, citizen, we all know you. ठीक है, वो अपना रेफरेंस दे के उसको बचाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो वो गार्ड्स को बोलता है कि तुम्हें मुझे जानते हो. देन दे से दैट यस वी नो यू. देन टेल मी हाउ डिड दिस हैपन, कि ये सारा कुछ दोबारा कैसे हुआ, कैसे वो दोबारा एक प्रिजनर बन गया. ही हैज़ बीन अक्यूज्ड, उसे चार्ज किया गया है. आंसर्ड वन ऑफ देम. हु अक्यूज्ड हिम? आस्क्ड द डॉक्टर. इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स टू आंसर दैट बट द डिफाजर्स एंड वन अनदर. ठीक है, वो आंसर नहीं देना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने बचाया था. एक तो डिफाजर्स हैं, ठीक है, मैडम डिफाज, मिस्टर डिफाज, ओके, और एक और है वट अनदर. You will know tomorrow. Unaware of what was happening at the house, Miss Pross and Jerry entered a wine shop. ठीक है, इन दोनों ये तो गए हुए थे वाइन शॉप पे, उनको कुछ नहीं पता. They purchased some wine and were leaving when a man got up from a table. Then Miss Pross saw him. She screamed. और वहीं पे मिस प्रॉस को एक आदमी दिखाई दिया एंड शी शाउटेड लुकिंग एट हिम. और क्यों शाउट की है? क्योंकि he is her brother. Jerry became pale. The man looked angrily at her. और जिसको देख के वो चिल्लाई है वो भी बड़े गुस्से में देख रहा है उसे. Be quiet, he said in English. Oh brother Solomon, cried Miss Pross. और ये कौन है? बासड है और उसका another name क्या है? Solomon. And this was the question also in the exam. Okay, who is Barsad? Or they can also ask you what is his another name. And in other way they can also ask you what is the relationship of Barsad or Solomon and Miss Pross. Don't call me Solomon. Do you want me to get killed? क्या मुझे मरवाना चाहती हो? Asked the man in a frightened voice. Who is this man, Mr. Crunch? Come outside if you want to talk to me, said Solomon. Now what do you want? I want nothing, answered Miss Pross. ठीक है, वो बड़े गुस्से में बोल रहा है उसका ब्रदर उससे. Oh brother Solomon, aren't you glad to see me? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? You are my only brother. I would do anything for you. I am not surprised to see you. I know everything. I have a big job. Now go away. My brother Solomon, working for these Frenchmen? Oh Solomon, do you not have one kind word for me? थोड़ा तो मुझसे अच्छे से बोलो. Miss Pross loved her brother dearly. He had taken all her money and spent it years ago. और पहले उसने धोखे से उसकी सारी जो भी उसके पास था मनी वगैरह सारा कुछ वो ले गया था, उसने स्पेंड कर दिया था और फिर भी वो उससे प्यार करती है. एंड देन ही हैड डिसअपियर्ड, और फिर कभी वापस ही नहीं आया. शी स्टिल थॉट दैट ही वॉज द फाइनेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. और हर सिस्टर को ऐसे ही लगता है ना कि उसका ब्रदर, जैसे हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा. द सेम वे. बिफोर सोलोमन कुड आंसर Jerry touched his arm. Tell me, he asked, is your name Solomon or John? John means John Barsad. She calls you Solomon. She should know. She is your sister. ठीक है, अभी जेरी क्रंचर उससे पूछ रहा है. I know you are John and Pross was not your name in England. ठीक है, इंग्लैंड में उसका क्या नाम था? जॉन बार्सर. What do you mean? What I mean is this: you were a spy at Old Bailey, and what was your name then? Barsar said, a man who had just come up. फिर वहाँ पे कोई और आता है और वो आके क्या बोलता है कि इसका नाम बार्सर था वहाँ पे.
यस दैट इज इट सेड जेरी। ठीक है, जेरी ने बोला कि हाँ यही था। द मैन हु हैड कम अप वॉज सिडनी कार्टन। और अभी अभी जो आया वो कौन आया? कार्टन आया। When did you come? asked Miss Pross. Yesterday, answered Sydney. Sydney Miss Sydney Garden. I had some work with Mr. Lorry. Turning to Solomon, he said, "Now, Mr. Barsad, I want you to come with me." ठीक है, अभी वो बार्सड से कुछ बात करनी चाहता है। बिडिंग मिस प्रॉस गुड बाय, उसने मिस प्रॉस को गुड बाय बोली। सिडनी प्रोसीडेड टू मिस्टर लॉरी विद जेरी एंड बार्सड। और वो तीनों गए हैं मिस्टर लॉरी के पास। मिस्टर लॉरी वाज सरप्राइज्ड, ही रिमेंबर्ड बार्सड। बार्सड हैड बीन अ विटनेस अगेंस्ट चार्ल्स डार्ने। ठीक है, पहले भी वो डार्ने के खिलाफ उसने गवाही दी थी। दिस इज मिस्टर बार्सड said Sydney Carton to Mr. Lorry. He is also Mr. Pross. He is Miss Pross' brother, Solomon, whom she often speaks of. Dear me, said Mr. Lorry. Barsad, yes, but Pross, I had no idea that he was Miss Pross' brother. Yes, they met at the wine shop. वो अभी अभी जो मुलाकात हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि वाइन शॉप में मिले थे। मिस प्रॉस recognized him, but I have worse news. Charles has been arrested again. Okay, this is the news given by Carton to Mr. Lorry. When I had just left him a few hours ago. Just now, said Sydney, I happened to hear Bassett tell one of his friends who is also a spy. ठीक है, कि बार्सड बोल रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ जो 20 सपाए हैं, ओके, जासूस है। द ट्रायल इज टुमारो। और अभी उसका डालने का ट्रायल जो अगले दिन है, कल है। सिडनी टर्न्ड टुवर्ड्स बार्सड, हु वॉज योर फ्रेंड एट द वाइन शॉप? वेट, आई रिमेंबर हाउ, एंड दैट इज रॉजर क्लाई। ही टू वॉज अ स्पाई एट ओल्ड वैली। ठीक है, ये दोनों ही स्पाई थे। Oh no no, cried Barsad. Roger Clay has been dead some years ago. वो तो मर गया था. I placed him in his coffin and he was buried at Pancras in London. At this, Jerry placed his hand on Barsad's shoulder. ठीक है, तभी जारी क्रंचर ने बार्सड के शोल्डर पे हाथ रखा है। सो यू पुट रॉजर क्लाई इन हिज कॉफिन। ठीक है, वो से पूछ रहा है। Yes, I did. Then I want you to ask who took him out of the coffin. तो फिर मैंने ये पूछना है कि उसको कॉफिन से बाहर किसने निकाला? बार्सड became pale. तो अभी ये बात कॉफिन से वो बाहर निकला, कैसे निकला, ये क्रंचर को कैसे पता है? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गिल्टी है। वो उसने ऐसी जॉब कर रखी है जिसकी वजह से उसे ये बात पता थी। ओके, इन द अपकमिंग चैप्टर्स और इन दिस चैप्टर वी विल कम टू नो। Barsad became pale. What do you mean? He asked. What I mean is that Clive was never in the coffin. मतलब वो कभी मरा ही नहीं था। तुम बोल रहे हो मरा था, लेकिन वो नहीं मरा। Everyone looked at Jerry with surprise. You buried stones and mud in the coffin. You never buried Clive. I and two more people know about it. I will choke you, means I'll kill you, treating a hard-working man like me. Come, said Mr. Lorry. What is all this? You have some explanation to do, Mr. Barsad. Well, said Barsad, everybody hated us in London as they knew we were spies. ठीक है, अभी वो सच बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि सबको पता था कि हम स्पाई हैं। ठीक है, और सब भी हमसे हेट करते थे। वी हैड टू गेट अवे एंड दैट वाज द ओनली वे क्लाई कुड गेट अवे। और इस सब से बाहर निकलने का क्या तरीका था कि लोगों को ये शो कर दो कि वो है ही नहीं, मर गया। आई चोक यू, रिपीटेड जेरी। जेरी, नॉट नाउ, सेड मिस्टर कार्टन। ही टर्न्ड टुवर्ड्स बार्सड। आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। व्हाट डू यू वांट? यू आर अ जेलर एट द प्रिजन वेयर चार्ल्स इज। ठीक है, अभी उसकी क्या जॉब है? अभी वो जेलर की जॉब कर रहा है। कौन सी प्रिजन में? जहाँ पे चार्ल्स है। आई कैंट लेट हिम आउट। You don't have to let him out, but you are a jailer there and can go in and out as you like. ठीक है, लेकिन बार्सड पहले भी बोलता है कि मैं उसे वहाँ से नहीं निकाल सकता।
लेकिन फिर डार्ने बोलता है, सॉरी कार्टन, कि हाँ नहीं निकाल सकते हो, लेकिन तुम जेलर हो ना, तो वहाँ पे कभी भी जा सकते हो, आ सकते हो अपनी इच्छा से। यस गुड, देन लेट अस गो टू द अदर रूम। फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं। सिडनी कार्टन हैज़ अ प्लान विच ही एक्सप्लेन टू बार्सट। उसने अपना कोई प्लान है वो बताया बार्सट को। ही वॉज प्लानिंग टू टेक चार्ल्स डार्नेज प्लेस इन प्रिजन। उसने डार्ने की जगह लेनी है। क्यों लेनी है डार्ने की जगह? आपको याद है जब इंग्लैंड में उस पे केस चला था, ट्रेजन केस चला था, तो वो क्यों छूट गया? क्योंकि उसने जो विटनेस था उससे ये कह के कंफ्यूज किया था कि डार्ने और चार्ल्स वो सेम सेम दिखते हैं, दे लुक अलाइक। ओके, तो अभी भी वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने जा रहे हैं कि वो दोनों सेम सेम दिखते हैं। वो खुद जेल के अंदर चला जाएगा और डार्ने को बाहर भेज देगा with the help of Barsad. And no one would know the difference, but because Sydney and Charles looked alike. He was doing this for Lucy and the child. He loved them both dearly. और इसका क्या मतलब है आपको याद है? उसने कार्टन ने प्रॉमिस किया था दैट आई विल डू एनीथिंग फॉर यू और एनीवन यू लव और एनीवन डियर टू यू, के लूसी के लिए या उसके जो भी डियर नियर एंड डियर है उसके लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो अभी वो इस चीज़ को साबित कर रहा है, वो सच्ची में कर रहा है। ओके, वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देगा उसके लिए। ही लव्ड देम बोथ डियरली, ठीक है, लूसी एंड लिटिल लूसी। ही वॉज रेडी टू डाई टू सेव चार्ल्स फॉर देम, उनके लिए, चार्ल्स के लिए नहीं। Barsad was afraid when he heard Sydney's plan. It was very dangerous, said Barsad. You will be in more danger if you don't do as I say, replied Carton. How? लेकिन बार्सड क्या बोल रहा है कि बड़े खतरे का प्लान है, खतरे वाला, डेंजरस है। तो कार्टर बोलता है कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो नहीं किया तो उससे भी ज़्यादा खतरे वाली बात होगी। आई विल टेल देम हु यू आर, तो मैं उनको बोल दूंगा, सच बता दूंगा कि तुम कौन हो। एंड हाउ यू यूज्ड टू बी स्पाई फॉर फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स इन इंग्लैंड, ठीक है, वो इंग्लैंड में स्पाई था ना, लेकिन किसका स्पाई था? फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स का, ठीक है। तो वो उसे, जो अभी रेवोल्यूशनरीज हैं, वो एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करने के लिए वैसे ही उसे मार देंगे। You don't want them to know that Clyde was a spy for the aristocrats. People here have seen you talking to him. It looks bad, doesn't it? Clyde pretending to die and then coming back to life. You two might be Englishmen plotting against the French. Bassett was now really frightened. All right, he said, I will let you inside Darnage's cell. ठीक है, मैं ले जाऊंगा वहाँ पे। When Carton and Barsad had gone to the other room, Mr. Lorry was left alone with Jerry. और अभी इनकी बात होगी, ठीक है, वो तो गए ना दूसरे कमरे में, कार्टन एंड बार्सड, तो मिस्टर लॉरी और जेरी रह गई यहाँ पे। जेरी डिडंट लाइक इट बिकॉज मिस्टर लॉरी वुड आस्क अ लॉट ऑफ सर्चिंग क्वेश्चंस। जेरी सेड, मिस्टर लॉरी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग बिसाइड्स बीइंग अ मैसेंजर। तो अभी उन्होंने क्या पूछा है कि एक मैसेंजर बॉय है ना और जॉब्स करता है टेल्सिस बैंक के लिए, तो इसके अलावा तुम्हारा और क्या काम है? आई हैव डन सम डिगिंग, तो वो सच्ची बोल रहा है कि मैंने कुछ डिगिंग वर्क किया था। आंसर जारी अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ा। आई एम अफ्रेड यू हैव डन समथिंग बैड। डोंट यू एक्सपेक्ट मी टू सेव यू एंड डोंट यू एक्सपेक्ट मी टू वर्क फॉर टेल्सन्स एनीमोर? Well, I don't say that I have or I have not done anything bad. Well, there are two sides to it. ठीक है, वो बता तो रहा है कि हाँ, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा था या नहीं बुरा था, इसके भी टू साइड्स हैं। द डॉक्टर्स मेक बिग मनी आउट ऑफ इट, ठीक है, जो वो काम करता था, डिगिंग करता था ना डेड बॉडीज़ की, तो डॉक्टर्स उससे ज़्यादा पैसे कमाते थे, वेयर एज आई मेक अ लिटिल।
और मुझे मेरे तो थोड़े से ही बनते थे। द डॉक्टर्स कीप देयर गोल्ड एट टेल्सन्स, और फिर जो डॉक्टर अपने पैसे कमाते थे अपना गोल्ड टेल्सन्स के बैंक में रखते थे। एंड टेल्सन्स इज प्राउड टू नो देम। आई टेक मैसेजेस फॉर टेल्सन्स एंड दे आर गोइंग टू फायर मी। ठीक है, वो कंपेयर कर रहा है कि जो काम मैंने किया उसके साथ डॉक्टर्स ज़्यादा पैसे कमाते थे, मेरे कम होते थे। ठीक है, डॉक्टर्स ने गोल्ड बनाया और गोल्ड रखा टेल्सन्स बैंक में, और बैंक को उन पे प्राउड फील हुआ। लेकिन मैंने मैसेंजर का काम किया बैंक के लिए और वो मुझे फायर करने वाली है। ये सारा कुछ तो फेयर नहीं है ना। What's more, Jerry continued, I wanted to stop it a long ago. बट would the doctors let me? ये बंद करना चाहता था मैं ये काम डिगिंग वाला, लेकिन डॉक्टर्स ने करने नहीं दिया। नो नो वे, दे kept me at it. They wanted those bodies. ठीक है, उनको वो डेड बॉडीज चाहिए थी। वेल आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू। आई विल स्टॉप नाउ। अभी मैं नहीं करूँगा। आई गेट अ जॉब एज अ ग्रेव डिगर एंड बरी देम डीप नाउ। ओके, आई विल वॉच दैट नो वन डिग्स देम अगेन। और मैं ये भी वॉच करूँगा कि कोई उनको दोबारा डिग नहीं करे। यंग जेरी कैन टेक माई प्लेस एट टेल्सन्स। said Mr. Lorry, say no more about it. Here are Mr. Carton and Barsad. वो दोनों आ गए हैं। Goodbye, Mr. Barsad, said Sydney. See that you keep your promise. Barsad nodded, means he shook his head and left. Carton sat down besides Mr. Lorry, and Mr. Lorry was thinking about Lucy and Dr. Manette. Tears were running down his face. You are a good man and a true friend, said Carton. Don't give up now. I may yet find a way to save Charles. For some time, Sydney sat looking at the fireplace. ठीक है, अभी सिडनी के दिमाग में प्लॉटिंग चल रही है, प्लान चल रहा है। Then he said, are you going back to England soon, Mr. Lorry? Yes, I have finished my work here. I was planning to go back earlier, then Charles got arrested. ठीक है, पहले जाना चाहता था लेकिन चार्ल्स अरेस्टेड हो गया। You have had a long and useful life. You have helped many people, said Sydney. My life is finished. ठीक है, पहले भी अपनी लाइफ के बारे में वो यही सोचता है ना कि वो यूजलेस फेलो है। आई शैल नेवर लिव टू बी ओल्ड। मैं कभी भी बूढ़ा होने तक जिंदा नहीं रहूँगा। आई हैव वेस्टेड माई लाइफ वेल आई एम टॉकिंग टू मच अबाउट माई सेल्फ। आर यू गोइंग आउट, सेड yes, said Mr. Lorry. Good night. Try to get some sleep. You look tired. Yes, replied Sydney. That night, Carton did not try to sleep. लेकिन उसने सोने की कोशिश नहीं की। He could not sleep. He walked about the streets of Paris. वो घूम रहा है गलियों में, पेरिस की गलियाँ। In the morning, he went to a drug store, एक ड्रग स्टोर जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे वो गया। Handed a piece of paper to the druggist. The druggist gave him a small bottle against the payment. ठीक है, उसने पेमेंट करी है, उसको एक बॉटल मिली है। Be very careful with it, said the druggist. Too much of it can put a man to death. अगर इसकी जो भी बॉटल में है चीज़ लिक्विड, अगर उसकी ज़्यादा अमाउंट यूज़ हो जाए तो it can be harmful for a person. Yes, I know, replied Sydney. He then went to the court where Charles was to be tried. फिर वो कोर्ट में चला गया जहाँ पे उसका ट्रायल है, चार्ल्स का ट्रायल है। मिस्टर डॉक्टर मैनेट एंड लूसी वर देयर। ये दोनों पहले ही वहाँ पे है। Lorry soon arrived. Charles was soon brought in. Lucy looked at her husband with love and courage, which gave him strength. Charles Evermond called Darnay, you are an enemy to the Republic of France, said the judge. ठीक है, जज ने बोला है कि तुम एनिमी हो रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के। नो आई एम नॉट, रिप्लाइड चार्ल्स। हु सेज सो? 3 people. और कौन कौन है 3 people? अर्नेस्ट डेफार्ज,
Madame Defarge and Dr. Manette. ओके, अर्नेस्ट डिफार्ज जो मिस्टर डिफार्ज है, देन मैडम डिफार्ज एंड डॉक्टर मैनेट। और ये दोनों का तो समझ में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर मैनेट का वो क्यों बोल रहे हैं, वो उस लेटर के बेस पे बोल रहे हैं जो डार्ने को सॉरी डिफार्ज को मिली थी। याद है ना, डिफार्ज गया था डॉक्टर मैनेट के सेल में और वहाँ से उसने एक ब्रिक निकाली थी चिमनी में से, वहाँ पे एक लेटर मिली थी। उस लेटर में जो लिखा है उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे वो चार्ल्स डार्ने को गिल्टी साबित कर रहे हैं। When Dr. Manet's name was called, there was an uproar. वहाँ पे एक तरीके की disturbance हो गई in the court. Dr. Manet got up. He was pale and trembling. Trembling means shaking. There is some mistake, said the doctor. Charles is my daughter's husband, and my daughter is very dear to me, dearer than my own life. Who says that I speak against her husband? साइलेंस सेड द जज। लेकिन ठीक है, जब हम डॉक्टर मैनेट का नाम लिया कि उनके अकॉर्डिंग बी चार्ल्स डार्ने इज एनिमी टू द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, तो डॉक्टर मैनेट वो खड़े होके वो चिल्लाने लगे। ओके, लूसी डॉक्टर मैनेट सैट डाउन, लूसी केम क्लोजर टू हिम, अर्नेस्ट डिफार्ज वाज कॉल्ड एज अ विटनेस। तो फिर जो मिस्टर डिफार्ज है, अर्नेस्ट डिफार्ज है, उसको बुलाया गया। He told the court about Dr. Manet's many years in prison. तो अभी वो प्रेजन की बात और प्रेजन में क्यों था वो सारा कुछ। That he had been Dr. Manet's servant when he was young. कौन था सर्वेंट? डिफार्ज। And how the doctor had been brought to him when he was let out. Let out means जब वो जेल से रिलीज हुआ तब भी कैसे उसके पास लेके आए थे। Were you at the taking of the Bastille? asked the judge. Yes. You did some good work there? Yes, I believe I did. What did you do that day? I knew that Dr. Manet was a prisoner there. I knew his cell number. I went there, pulled out some bricks and found a paper. Here it is. Let the clerk read it. ठीक है, जब वो बाकी रेवोल्यूशनरी के साथ वो गया था वहाँ पे और कैसे उसने वो पेपर ढूंढा, ठीक है, और पेपर फिर दे दिया क्लर्क को रीड करने के लिए। With this the chapter is over. Now let's do the question answers. First one is, why was Charles arrested again? Answer is, Charles was arrested again because he was accused by the Defarges and one other. और one other कौन थे? डॉक्टर मैनेट, ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली हुआ। What work did Jerry Cruncher do besides carrying messages? क्या करता था वो? डिगिंग का काम। Okay, he used to dig up dead bodies to give to the doctors. What plan did Carton have to rescue Darnay? Carton had a plan to take Darnay's place in the prison to save him. Okay, with this the chapter ends. Thank you for watching.